ध्यान से
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Kund Bihari Radha Kund Bihari Shri Radhe Jai Radha Kund Bihari Radha Kund Bihari Radhe Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Hare Krishna Mahamantla ki Jai Om Vishnupada Hams Parivacharya Stotra Shri Srimad Divine Grace Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Nandpur Iskon Pranacharya Vivi Pranacharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Hams Parivacharya Stotra Shri Srimad Divine Grace Shila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Nandkoti Vaishnava ki Namacharya Shri Haridas Thakur प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वजमून वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की द्वारका धाम की श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक ट्रस्ट की ग्रंथ राजमहल भागवतम की गंगा माई की
जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समवेत भक्त विंद की। All glory to the somebody devotees, all glory to the somebody devotees, all glory to the somebody devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga. So let us offer our most acceptable obeisances to all the Vaishnavas who have just added that of the tree. Ocean of mercy, with compassion, for the all conditioned souls. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Koti Vaishnava ki, Vaishnava Thakur Śrīla Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhara Padakamalam Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Samagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Gana Lalita Shri Vishakam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahamadhyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jai Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna. सभी का स्वागत है हमारे रविवार सत्र में, जिसमें हम लोग क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। आज तो हम चर्चा करने वाले शिक्षाष्टकम के ऊपर। यहाँ पर से कितने लोग शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं या फिर पता है किसी को कि शिक्षाष्टकम क्या है? पता है? और रोज पाठ कौन करता है शिक्षाष्टकम का? इसमें से सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं या पाठ करते हैं निरंतर? तो अच्छा, तो ये शिक्षाष्टकम जो है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला का अंतिम अध्याय है, 20वां अध्याय। और उसमें ये 8 प्रार्थना, 8 श्लोक जो कि महाप्रभु के हृदय से निकले हुए हैं वो आते हैं। और ये शिक्षाष्टकम जो है, जैसे कि महाप्रभु 1486 में उनका आविर्भाव हुआ था भौतिक जगत में, 1486 में। और उनकी जो लीला है, महाप्रभु की लीला 3 भागों में डिवाइडेड है। आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला कितने साल चली? 24 साल। आदि लीला 24 साल, मध्य लीला 6 साल। और तब 30 वर्ष के हो गए तब मध्य लीला समाप्त हुई, और 30 से अंत्य लीला चली 18 साल।
3 खंड में डिवाइडेड है वो। तो आदि लीला में क्या होता है कि महाप्रभु की का बचपन की लीला है, बाल्य लीलाएं आती है, उनका विवाह होता है, 2 विवाह होते हैं, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया के साथ, और वो बांग्लादेश जाते हैं, तो वो सब उनका आदि लीला में आता है। मध्य लीला में उनकी पूरी यात्रा आती है, वृंदावन यात्रा आती है, साउथ इंडिया की यात्रा आती है, और सबसे प्रसिद्ध उनका रामानंद राय के साथ संवाद आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राय रामानंद संवाद। और अंत लीला जो है, और नगर संकीर्तन, हाँ, मध्य लीला में नगर संकीर्तन आता है, महाप्रभु ने नगर संकीर्तन श्रीनिवास ठाकुर के घर, जो स्वयं नारद मुनि थे, जिनके घर जाके महाप्रभु ने नगर संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था, फिर उसको पब्लिक को भी दिया था। पहले इंटरनली करते थे वो श्रीनिवास आंगन में, और फिर उन्होंने बाहर वो सबके लिए खोल दिया। तो ये मध्य लीला में हुआ। अंत्य लीला में नगर संकीर्तन तो चलता ही रहा, पर महाप्रभु ज्यादा से ज्यादा समय पुरी में रहते थे, जगन्नाथपुरी में, और उनकी जो एक भक्त के जो लक्षण रहते, शुद्ध भक्त के जो लक्षण रहते हैं, से रोमांच कंपा अश्रुतरम, जैसे उनके बाल खड़े हो जाना, आंखों से आंसू आना, बार बार उनको चक्कर आके गिर जाना, वो अंत्य लीला में दिखने लगा ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा उन्होंने शुरुआत के, अंत्य लीला के शुरुआत में एक्सपोज रखा बाहर, पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था कि वो अपने गुह्यतम जो अनुगण थे उनके साथ, जैसे राय रामानंद हो गए, और कौन थे, स्वरूप दामोदर, इनके साथ ज्यादा, गदाधर पंडित, इनके साथ भागवत पे चर्चा, अलग अलग कवियों का जो लिखन है, जैसे जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद उनको पसंद था, चंडीदास बोल के एक लेखक थे, वो बिलोमंगल ठाकुर का कृष्ण करणामृत, ये सब वो पढ़ते थे, और हरिदास ठाकुर, इनके साथ संग करना, ये सब वो करते थे। और विद्यापति भी एक और लेखक थे, जिनकी लेखी महाप्रभु को बहुत अच्छी लगती थी। तो बार बार भागवत के जो 7वां स्कंद था उनको बहुत पसंद आता था। जब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु को जब नरसिंहदेव मारते थे तो बहुत एकदम खुश हो जाते थे, और बार बार बोलते थे गदाधर पंडित, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। तो उनके अंदर जो चल रहा है, उनका जो मनोभाव है, वो बाकी भक्त लोग समझते थे और उनकी लेखनी में लेते थे। ज्यादातर शुद्ध भक्त जो रहते हैं, वो अपने जो ये उनको विकार ये जो आते हैं, अष्ट विकार बताते हैं ना, कि जो उनको एक्सटेसी फील होती है, वो पब्लिक में बताते नहीं, क्योंकि उनको चाहिए नहीं रहता है कि मुझको जो पब्लिक है ये सब मेरी सिद्धि और ये सब मेरी जो लक्षण है उसके ऊपर मेरे फॉलोअर बने। जैसे प्रभुपाद कई बार आते, कीर्तन करते, लॉस एंजलिस मंदिर में गए और देखा बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है, चल रहा है, और प्रभुपाद जय राधा माधव करते करते ही रोने लगे, और वो रोने लगे ऐसे कि उनको क्लास देना था, पर वो इंस्ट्रक्शन देके चले गए कि कंटिन्यू द कीर्तन बोल के निकल गए। ऐसा कई बार प्रभुपाद ने किया है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनके जो उनको प्रेम भक्ति के द्वारा जो भी उनके ये विकार आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, वो बाहर कोई देख ले। तो महाप्रभु ने भी गंभीर में खुद को, गंभीरा मंदिर जो है, गंभीर जगह है पुरी में, वहां पर वो खुद को सीमित रखते थे, और उनके साथ जो रहते थे वो उनके अलग अलग लेखन करते थे। जैसे रूप गोस्वामी ने, महाप्रभु ने, वैसे तो महाप्रभु ने कई इंस्ट्रक्शंस दिए, कई बार लोगों को संबोधन किया, जैसे कि रूप गोस्वामी को उन्होंने लगातार 10 दिन तक प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पे उन्होंने उनको बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए,
भक्त की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। अपने अनुयायियों को महाप्रभु ने बताया कि उनको कृष्ण के जो मंदिर है और जो लीला स्थली है वो प्रकट करनी है, हरिनाम का प्रचार करना है, पुस्तक लिखने हैं। ऐसे कई निर्देश उन्होंने रूप गोस्वामी को दिए प्रयाग में। फिर सनातन गोस्वामी को लगभग 1 महीना 30 दिन या 40 दिन तक उन्होंने वाराणसी में उन्होंने संबोधन किया, सनातन गोस्वामी को बताया भक्ति के अलग अलग स्तर के बारे में उन्होंने चर्चा की, भक्त कैसे भक्ति में आगे बढ़ सके इसके बारे में बताया। और उनको सुन करके जो महाप्रभु बोल रहे थे उन्होंने लिखा। तो अनेकों अनेक ग्रंथ हमारे आचार्य ने लिखे हुए हैं। षडक गोस्वामी ने खास करके, रूप गोस्वामी ने का सबसे प्रचलित है भक्ति रसामृत सिंधु, सनातन गोस्वामी का उन्होंने भागवत के ऊपर टीका दी है अपनी, और ऐसे कई ग्रंथ उन्होंने लिखे। पर रूप गोस्वामी ने क्या किया कि पद्यावली नामक पुस्तक लिखी, जिसमें महाप्रभु ने यहाँ वहां जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्होंने वो सारे श्लोक लिखे। और वो पद्यावली में ये अभी ये जो शिक्षाष्टकम है, ऐसा नहीं था कि महाप्रभु एक दिन आ गए चलो आज मैं शिक्षाष्टकम बोलूंगा आप लोगों को, आज 8 जो श्लोक है भक्ति में कैसे बढ़ना है उसकी शिक्षा दूंगा, ऐसा नहीं था। ये यहाँ वहां कभी भी रैंडमली महाप्रभु ने बोले हुए और उसका चयन करके पद्यावली में डाले उसको इन्होंने, किसने डाला? रूप गोस्वामी ने डाला। और पद्यावली से उठा के उसको प्रॉपरली सीक्वेंस क्रमशः डाला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में। तो ऐसे शिक्षाष्टकम श्लोक की रचना हुई है। ये महाप्रभु ने एक साथ नहीं बोला है कहीं पर, ये अलग अलग जगह अलग अलग स्थली पर बोला गया था। उसको रूप गोस्वामी पद्यावली में लेके आए और पद्यावली से वो आया चैतन्य चरितामृत में। तो हम लोग अभी सबसे पहले एक बार पूरा शिक्षाष्टकम गाएंगे। तो आप लोग सब ओपन कर लीजिए अपने पास। सब लोग साथ में गाएंगे या यू वांट इन कॉल एंड रिस्पॉन्स? सब साथ में बोल सकते हैं। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधो जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकारि बहुधा विद सर्वशक्ति उत्थापिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् नमामि दुर्दैव मित्रशमियागमिनामदापि सुनीतेन करोरपि सहिष्णुना अमानदेन कीर्तनीया सदा जननं सुन्दरी कृपया
स्थितधूलि सदृशं चिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदर्दया पुरप्रेषितं वपुपदा तदाग्रहणे भविष्यति युगायतं निमीशेन चक्षुषा भावसायितं सुजातं जगत्सर्वं गोविन्दगिरेरमे आश्रित्य वा पादकान्तिनोत्सवान् अदृष्टात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा ददातुलं स्फटो मत्प्राणनाथस्तु सैव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम की तो अंत्य लीला, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला 20वें अध्याय 65वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो भी ये शिक्षाष्टकम की प्रार्थना रोज पढ़ेगा बोलेगा उसको अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा समय के साथ। तो ये उन्होंने फलश्रुति इसका दिया हुआ है कि जो भी अष्टकम बोलेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। महाप्रभु ने जब पिछले बार आए थे कृष्ण के रूप में, कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने 700 श्लोक का गीता दिया था और बोला था कि ये है प्रोसेस मेरे तक आने का। पर अभी कलयुग में 700 तो बहुत ज्यादा लगता है ना, तो सब छोटा फॉर्मेट में हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट 50 ओवर का हो गया, 50 का 20 हो गया, 20 का आगे क्या होगा पता नहीं, सब छोटे छोटा फॉर्मेट में। तो बोला कि कलयुग के बद्ध युग के लिए एक और शॉर्टर वर्जन। तो ये शिक्षाष्टकम में 8 श्लोकों में स्टार्टिंग से लेके ये जो जिस तरीके से सीक्वेंस अरेंज किया हुआ है कि एकदम स्टार्टिंग भक्ति का स्टार्टिंग का स्टेज से लेकर कि चेतो दर्पण मार्ग कि आपका हृदय क्लीन होगा एंड तक आश्लिष्य वह पात्रता, मतलब कुछ भी करो मेरे साथ, मुझको रखो मारो काटो बट मेरा प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। तो ये पूरा 8 श्लोकों में प्रोग्रेशन स्टार्टिंग भक्त के स्टार्टिंग से तो एंड तक का ये 8 श्लोकों में दे दिया है महाप्रभु ने। और इसको ही बोला है कि ये संपूर्ण ज्ञान है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, इतना कर लिया जो इसमें लिखा हुआ है 8 श्लोक में तो भी काफी है। जैसे कि आजकल लोग ऐसे एनर्जी बार और एनर्जी ड्रिंक आता है ना, तो इतना सा बार खा लेंगे तो पूरा 1200 कैलोरी 1500 कैलोरी दिन का मिल जाता है आपको, फिर और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। ये वैसा ही है कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में, इसको छोटे से 8 श्लोकों के शिष्टाष्टकों को ले लिया तो आपको सारे वेदों का भागवत का जो ज्ञान है इसके अंदर कंप्रेस्ड फॉर्मेट में महाप्रभु ने डाल के दिया हुआ है। आज का क्लास थोड़ा टेक्निकल रहेगा और उसके लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ कुछ कुछ चीजें बताने के लिए, क्योंकि अलग अलग भक्ति के स्तर रहते हैं। एक तो 9 स्तर रहते हैं भक्ति के। रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया हुआ है कि आदौ श्रद्धा तथा आदौ श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि और उसके बाद आसक्ति भाव और प्रेम, ऐसे 9 स्टेप में प्रोग्रेस होता है भक्ति में। तो ये 9 स्टेप आती है कि पहले आपको, प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिखते कि पहले फॉर अजम्पशन कंसीडर कृष्णा इज गॉड, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन कि भाई मान लो कि कृष्णा गॉड है। तो आदौ श्रद्धा, आपको श्रद्धा रखनी है कि जो आचार्य बोल रहे हैं
ये सही है। उसके बाद साधु संग, ऐसे भक्तों के संग में आना है, भजन क्रिया करना है, मतलब उसमें आपको जप करना है। अनर्थ निवृत्ति, जप करोगे तो क्या है, अनर्थ हृदय से मैल निकलता जाएगा, तो अनर्थ निवृत्ति। निष्ठा, फिर धीरे धीरे आप उसमें प्रबल बनते जाओगे भक्ति में आगे। ये नौ विधा भक्ति की प्रोसेस है ये, आप उसमें प्रबल बनते जाओगे। निष्ठा और रुचि, फिर उसमें टेस्ट आने लगेगा आपको। जैसे एक अच्छा एग्जांपल नहीं है, पर शुरुआत में जब कुछ लोग बोलते हैं कि वाइन पहली बार कोई पीता है तो बोलता है कड़वा है, पर फिर उसका टेस्ट उसको आ जाता है तो बोलता है बराबर ये वाइन ऐसा है, ये इतने साल पुराना है, ऐसा जानकार लोग बोलते हैं। ये अच्छा उदाहरण नहीं है, पर आपको भक्ति में टेस्ट आता है। ऐसा लगता है, अभी कैसा लगता है कि अरे 16 माला कब खत्म होगा, पर तब लगता है जैसे कि हरिदास ठाकुर बोलते थे कि कितना राउंड करते थे डेली, 192 राउंड करते थे, और वो फिर भी लेमेंट करते थे कि अरे एक ही मुख क्यों है, 1000 मुख होते तो और भी ज्यादा माला हो सकती थी मेरी। तो ऐसा लेमेंटेशन, ऐसा जब टेस्ट आता है, जब भी आप कोई चीज करते हैं ऊपर से करेंगे तो ये दो घंटा जो लगता है वो 20 घंटा जैसा लगता है कि कभी खत्म होगी ये माला, खत्म ही नहीं होगी। पर कभी अगर आप सीरियसली प्रयास करेंगे, सुबह जल्दी उठ के और एकदम पहले अच्छे जपा टॉक सुन के और बहुत प्रयास करेंगे, तो कई बार अनुभव ऐसा भी होता है कि अरे 16 माला हो भी कि इतने जल्दी, ऐसा अनुभव भी होता है। तो जो आत्मा है उसका स्वभाव है सच्चित आनंद, वो आनंद ढूंढता रहता है सब जगह, और वो आनंद उसको हम जप में नहीं देंगे तो वो आनंद पूरा दिन ढूंढता रहेगा। यहाँ आंखें ढूंढती रहेगी कुछ अच्छा देखना है, जीवा बोलते रहेगी कुछ अच्छा खाना है, कान बोलेगी चलो नया पिक्चर आया गाना सुनते हैं। तो ऐसा अगर, पर आपने जैसे कि आप अच्छे से खाना पीना बाहर, घर से खाना पीना खा के निकले, फिर बाहर वड़ा पाव कोई बेच रहा है या पानी पूरी बेच रहा है तो ज्यादा मन विचलित नहीं होता। पर आप भूखे निकले हो घर से, फिर कोई अरे चना बेच रहा है, पानी पूरी खा लूं क्या, एक टेस्ट कर लेता हूँ, श्री विष्णु बोल दो क्या होता है, तो डोसा खा लेता हूँ। तो भूखे घर से निकले तो फिर ये सब आता है। तो ऐसे ही अपना जो हृदय है पूरा आप चैंटिंग में अच्छे से लगा करके सुबह पक्का मॉर्निंग प्रोग्राम करके तैयार रहेंगे तो बाकी कोई चीज विचलित नहीं करेगी दिन भर। और हम लोग जनरली जब शिक्षाष्टकम मंदिर में गाते हैं उसके बाद उसको मैकेनिकली गा लेते हैं, चेतो दर्पण ऐसा बोल के कभी, और अंदर चलते रहता है कि जल्दी खत्म हो जाए तो माला चालू करनी है, इसके बाद फिर अपने मन में प्रोग्राम चालू हो जाता है, माला के बाद ये आरती, फिर निकल जाना है घर जाके ये काम करना है, जाते जाते रास्ते में ये उठाना है, ये पकड़ना है, और फिर घर जाके स्कूल उसको छोड़ना है। ऐसा प्लानिंग पूरा शिक्षाष्टकम में होता है, माला के टाइम पूरा प्लानिंग, पूरा दिन का प्लानिंग हो जाता है। तो उसके लिए नहीं है ये मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि एकमेव बुद्धि, मतलब ईट वाइल यू ईट, स्लीप वाइल यू स्लीप, चैंट वाइल यू चैंट। जब जो चीज करनी है तब वो चीज करो, उसमें उस टाइम पर दूसरी जगह मन मत भटकाओ। उससे क्या होता है, लोग आजकल बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग करना चाहिए बहुत, तो मल्टीटास्किंग में लोग क्या करते हैं कि भाई जप माला भी करते हैं, भागवतम क्लास भी सुनते रहते हैं। ऐसे नहीं होता है। आपको जप करना है मतलब जप ही करना है। कृष्णा डजंट लाइक इफ यू डोंट गिव अटेंशन, इफ यू गिव डिवाइडेड अटेंशन। और इसका प्रूफ क्या है, आप कृष्ण से ध्यान भटका दो, उनको पूरा अटेंशन चाहिए रहता है। इसका प्रूफ है दामोदर लीला। माता यशोदा सिर्फ गैस बंद करने उठी थी तो उनका तो ब्लास्ट हो गया, पूरा मटकी वटकी फोड़ के खत्म कर दिया।
तो दैट इज एन इंडिकेशन कि कृष्णा वांट्स नथिंग लेस देन 100% अटेंशन. डीलिंग विथ कृष्णा इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट. We have to be careful. Prabhupada said, we have to be careful. You are dealing with Krishna, you have to be careful. तो ऐसा करते करते आसक्ति आती है, अटैचमेंट आती है, फिर भाव स्टेज में you start feeling the ecstatic symptoms, genuine love for God. जैसे कि गोपी जो रहती है वृंदावन में, उनको बोलना नहीं पड़ता है कि अरे भागवतम क्लास है कृष्ण के बारे में, चलो सुनने चलो, आ जाओ. नहीं, वो लोग हमेशा ही वो बात करते रहते हैं, उनको नेचुरली है. जैसे दो प्रकार की भक्ति होती है, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति. वैदिक साधना भक्ति में क्या होता है कि यू आर बीन टॉट कि ए लिखा हुआ है टीचर ने, आप घोट रहे हो उसके ऊपर ए ए ए. तो वो गई वैदिक साधना, वो एक विधि दी गई है. यू हैव गिव, आपको एक सेट दिया हुआ है कि सुबह 4 बजे उठो, 4:30 से 6:30 अपना 16 माला करो, 6:30 बजे अगर घर में हो तो ये प्रोग्राम करो, और 6:30 से 7 मंदिर में वर्शिप करो, 7 से 8 बुक पढ़ो. ये एक विधि दी गई, एक सिलेबस दिया गया, एक आपको बताया गया कि ये आपको करना है. पर रागानुगा भक्ति में क्या रहता है, जब आप भाव पे पहुंच जाते हैं, वो 24/7 चलता रहता है. अभी ये मॉर्निंग प्रोग्राम करके अपने को लगता है थक गए यार, बहुत सारा काम कर लिया, आज 16 माला कर लिया, मंगला आरती कर लिया, भागवतम भी कर लिया, अभी प्रसाद पाएंगे और सो जाएंगे थोड़ा देर. तो वो थक जाते हैं हम लोग. पर रागानुगा भक्ति वाले क्या बोलते हैं, आड़ी और लाओ और भक्ति करना है. उनको कम लगता है जितना भी माला किया, और वो अलग ही टेस्ट है. क्योंकि एक चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था, उसमें आपको अभी आप छोड़ ही नहीं पा रहे, आप माला कंटिन्यू कर रहे हैं. फिर प्रेम भक्ति आगे का स्टेज है, प्रेम भक्ति, जिसमें यू हैव ऑल दी लव. आपके हृदय में भगवान के लिए शुद्ध प्रेम है, ना कुछ इच्छा है उसमें कि मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, इसके लिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं. ऐसा नहीं है. सिर्फ आप मुझको रखो, या असली सेवा जो लास्ट श्लोक में बोला है महाप्रभु ने, आप मुझको रखो या धुतकारो, आप मेरा आलिंगन करो या मुझको दूर करो, मैं आपका भक्त हमेशा रहूंगा. या कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, भक्ति करते हैं लोग, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो गुस्सा निकलता है भगवान पे, इतना आज तक मैंने साथ तेरा कुछ नहीं किया, तूने तो क्या किया मेरा. ऐसा हीरो वैसे मूवीज में आके बताते हैं कि खुश तो बहुत होंगे तुम ये सब करके मेरे साथ. भगवान क्या पड़ी है तुम्हें ऐसा सब करने की, तो मेरा बुरा करके खुश तो बहुत होंगे तुम, जो आज तक तेरे दर पे नहीं आया, आज आके रो रहा है. ऐसा तो भगवान पे ही गुस्सा निकालते हैं लोग. थोड़ा भक्ति करते हैं, अभी तेरा इतना नाम लिया, ये सब किया, क्या फायदा हुआ. अरे फायदे के लिए नहीं होता है. फायदे के लिए जाना है तो भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट खोले. लक्ष्मी चाहिए तो पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की सेवा करो, कुबेर की सेवा करो, अच्छा कुछ चाहिए तो उनकी सेवा करो, अश्विनी कुमार की पूजा करो अगर आपको अच्छे वर वधु चाहिए तो. पर भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो टॉप मोस्ट चीज के लिए करेंगे, और वो भगवान आपको देते हैं. इवन आचार्य बताते हैं कि भौतिक इच्छाएं भी हो तो भी कृष्ण की भक्ति करोगे, वो पूरी करेंगे. तो ये तो 2 चीज हो गई मैंने जो अभी बताई. एक तो 9 विधा भक्ति बताई, आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति. रुचि के बाद आसक्ति, भाव, प्रेम. तो ये 9 हो गई. तो 9 में से जो पहली 7 है उसको कंबाइन किया है, उसको हम लोग बोलते हैं साधना भक्ति. ठीक है, 7 हो गई, पहली 7 हो गई साधना, और उसके बाद हो गया भाव और प्रेम. तो ये 3 चीजें अपन ने बताया कि भाव और प्रेम में क्या फर्क है. कि पहले तो साधना में आप खुद प्रयास कर रहे हो कि
आप अपवर्ड्स है, वो उदाहरण दिया हुआ है कि आप इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, आप एक एक स्टेप ऊपर ऊपर जा रहे हो, पर वो एक आसक्ति के पास पहुंच गए, फिर निष्ठा, आसक्ति के बाद भाव और प्रेम, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। तो वो इसलिए उसको साधना बोला गया है। साधना के बाद भाव और प्रेम। भाव और प्रेम में यही है कि भाव में एक भक्ति लता का जो टेस्ट है भगवान के प्रति, जो प्रेम का जो एक्सपीरियंस है स्टार्ट होता है, वो एक्सपीरियंस जो टेस्ट है वो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, और प्रेम में फुल ब्लोन आप एक्सटैटिक सिम्टम्स पूरा टाइम शो करते हैं। और इसके बाद ये तो तीन चीजें ये हो गई। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है संबंध अभिधेय प्रयोजन। किसको पता है संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है? हाँ, हाँ, करेक्ट। हाँ, संबंध अभिधेय, संबंध मतलब क्या है, बेसिक है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये नोट्स दूंगा, और ये नोट्स में कौन सा श्लोक कौन से कंटेक्स्ट में वो समझेगा, तो आपको इसके लिए मैं ये पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर रहा हूं। संबंध अभिधेय प्रयोजन में संबंध मतलब मैं कौन हूं, पहले तो जानना कि मैं एक शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं किसका हूं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो मैं कृष्ण का हूं, ये पहले समझ लेना। मेरी व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब जान लेना कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मरणोपरांत क्या जाऊं, कहां जाऊंगा, कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ये सब जान लेना। ये आपका संबंध में आता है कि भगवान से आप साध्य कौन है, किसकी सेवा करनी है मुझको। एक्चुअली इतने सारे भगवान हैं, तो साध्य कौन है, किसकी सेवा अर्चना करनी है। शिव जी को का सेवा करना है कि विष्णु का करना है कि ब्रह्मा जी की करनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी है, या कौन है और जिसकी सेवा मुझको करनी चाहिए। तो वो संबंध में आता है। संबंध में वो भी आता है कि भगवान कौन है, भगवान के बारे में जानना। फिर अभिधेय में क्या आता है कि आपने जब वो संबंध एस्टैब्लिश कर लिया, तो अभिधेय में आता है कि वो संबंध को आप और बढ़ाने का प्रयास करते हो। जैसे कि किसी को, एक लड़का लड़की सपोज मिले पहली बार, फिर वो एंगेजमेंट के लिए एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बात करते हैं फोन पे, एक दूसरे के इंटरेस्ट जानते हैं। तो हम लोग कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला समझने का प्रयास अभिधेय में करते हैं। भगवान का जो भागवत है वो पढ़ते हैं, भगवत गीता, वो क्या चाहते हैं हमसे, भगवत गीता पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, 16 माला जप करते हैं, भक्तों के संग आके कथा करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा एक दूसरे परस्पर बात, मेरे बारे में वार्तालाप करते रहते हैं। तो अभिधेय में यह होता है कि आप स्टडीज कर रहे हो, भगवान के बारे में जान रहे हो। और प्रयोजन में क्या होता है, प्रयोजन में आप उसका जो फल प्राप्त होता है उससे आप उसकी प्रतीक्षा करते हो, आप ये सब कंटिन्यू करते हो अभिधेय में जो भी कर रहे थे, बट प्रयोजन में उसका फल आपको प्राप्त होता है, उसके लिए आप सिर्फ वेट करते हो और ये सब कंटिन्यू रखते हो। तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन हो गया। तो अभी मैं नोट्स देता हूं आपको, ये आप सब लोग बांटिए अपने आप में। थोड़ा ये साइड एक एक रख के बाकी है, इधर एक एक रखिए और आगे बाकी।
सबको मिल गया? अगर किसी को नहीं मिला तो शेयर कर लो, फिर से मैं इतना ही लाया था, अपने बाजू वाले से शेयर कर लो। तो 8 श्लोक में, ये 8 श्लोक का जो पहला पेज पे बताया, और इसके पीछे भी आज पहला श्लोक का एक एक शब्द से हमने उसकी भी चर्चा करेंगे। अब पहले ये वाला पेज पे आइए सब लोग। उस पे 8 श्लोक का मीनिंग क्या है, मतलब, और ये कौन से लेवल पे आते हैं? साधना भक्ति के हैं। पहले 5 श्लोक जो है वो साधना भक्ति के, जो महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे साधना भक्ति, जो हमने बताया क्या है साधना भक्ति के अंतर्गत। कोई बता सकता है कि साधना भक्ति के अंतर्गत क्या क्या था? नहीं, श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में। आदौ श्रद्धा, हाँ, तो ये है श्रद्धा के अंदर, सॉरी साधना भक्ति के अंदर। और उसके बाद श्लोक नंबर 6 और 7 है भाव भक्ति, और 6, 7, 8 तीनों प्रेम भक्ति के लक्षण उसमें बताए गए हैं। हाँ, पहला कॉलम में। उसके बाद संबंध अभिधेय प्रयोजन हमने देखा। संबंध स्थापित करने के लिए पहले 5 श्लोक है, प्रयोजन जो है वो है 6, 7, 8 श्लोक, और अभिधेय मतलब हमेशा उसके लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं वो पूरे 8 श्लोक है। ठीक है, जैसे कि पहला श्लोक का अर्थ है, जो पूरा पहला श्लोक है उसका मतलब यह है कि टीचर्स कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम, कि भगवान का जो नाम है वो क्यों लेना चाहिए, उससे क्या क्या फायदे होंगे, वो पहले श्लोक में बताया है। दूसरे श्लोक का जो मर्म है वो है 8 है ना, तो दूसरे के श्लोक का मन है कि दुर्दैव मित्रिशम यह जनी नानुरा, कि मेरा दुर्दैव है कि ये जो आपका भगवान का नाम इतना मधुर है और उसमें इतना शक्ति है, पर मैं उसका आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा तरफ से जो कमी है वो बताया है दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में बताया है कि प्रोसीजर ऑफ चैंटिंग द होली, कि क्या भाव में क्या आपका भाव रहना चाहिए भगवान का नाम लेते। तो क्या बोला है, त्रिनादपि सुनीचे न तरोर युवा सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनिया न। तो ये तीसरा श्लोक है। ये अभी ओवरव्यू कर रहे हैं, हर एक के डिटेल में हम जाएंगे, पर ये सिर्फ ओवरव्यू है कि 8 श्लोक में किसका क्या मतलब है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व, तो मुझको क्या, मेरे को भक्ति में क्या क्या चीज काम में नहीं आती। मेरे को धनम काम में नहीं आता, न जनम न सुंदरीम। हाउ टू रिड वन सेल्फ ऑफ डिसेप्शन एंड डिट्रीमेंटल मटेरियल डिजायर्स, जो भी भौतिक इच्छाएं है जो मुझको भक्ति में आगे नहीं ले जाएगी, उनको ना बोलना है, जस्ट से नो। वो आता है चौथे श्लोक में। जो भी भक्ति में बाधा बनती है, जो भी भक्ति में काम में नहीं आती, एनीथिंग दैट इज डिट्रीमेंटल फॉर योर मटेरियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आप उसको ना बोलते हो। न धनम न जनम न सुंदरी। और 5वें बताया है कि ऐ नंद तनुज किंग करम पतिता माम विषमे भवा बुद्धो, की ऐ नंद, नंद जी के जो पुत्रो आप तनुज किंकर, कैसे तो भी मैं भौतिक जगत में भटक गया हूं, पर मुझको क्या करो, आपके कैसे तो भी आपकी सेवा में संलग्न करो, आपके चरण की धूल ही बना के रख लो। तो ये आता है 5वें श्लोक में।
और 6वें श्लोक में आता है कि हाउ वन एक्सपीरियंसेस द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग क्लोजर टू कृष्ण, और कि अपना जो 6वां श्लोक क्या है, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वभूपदा तव नाम ग्रहणी, कि मेरे को इतना, अब जब हरि नाम मिल गया हमको, उसमें रुचि भी आने लगी, तो हम आगे इसे भाव भक्ति के स्टेज पर जाते हैं। तो क्या होता है, हमको भगवान के नाम में बहुत रुचि आने लगी है, टेस्ट आने लगा है, हमारी आसक्ति भगवान के नाम के ऊपर बहुत बढ़ गई है। तो अब उसके कारण क्या हो रहा है, वी आर एक्सपीरियंसिंग द लव ऑफ गॉड इन आवर हार्ट। हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम की आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति हो रही है, उसके कारण नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वभूपदा तव नाम, आपका नाम एक बार लेने से मेरे को ये सब हो रहा है। कोई बोलेगा हम तो इतना नाम जप करते हैं, हमको नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये उत्तर है, आप वो स्टेज तक आए नहीं है अभी तक। कोई बोलेगा हाँ भगवान का नाम लेके मेरे को आंख से आंसू आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आप भाव भक्ति पे आ गए हैं। जैसे कि हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हैं, अभी वृंदावन में। महाराज आजकल जब कथा करते हैं तो थोड़ा कुछ बोलते और रोने लगते हैं। कई लेक्चर्स है महाराज के, ऐसे बोलते हैं और रो पड़ते हैं। उनको याद आता है, उनको सब दिखता है सामने, मतलब ये हो रहा है, और वो आजकल लेक्चर भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो इतने एक्सट्रीम एडवांस लेवल स्टेज पे पहुंच गए। प्रभुपाद भी कई बार रो देते थे ऐसे लेक्चर देते देते। हमारे श्रीला गौर गोविंद महाराज, जो कि पूरा उड़ीसा में प्रचार किया इतना, वो भी, उनकी नाम के प्रति इतनी आसक्ति थी कि उनको जिस दिन भागवत कथा नहीं किया, भागवत पढ़ा नहीं, उनको सिर में दर्द चालू होता था। लोगों को सिर में दर्द होता है, चाय नहीं पिया, गुटखा नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिया, इनको अरे भागवत नहीं पढ़ा तो सिर में दर्द आता था। और अंत भी उन्होंने देह त्याग अपना ऐसे ही किया, अपनी लीला का समापन भी ऐसे ही किया कि भागवत क्लास देते देते रोक दिया बीच में, और उनको पता पड़ गया कि अभी तो बोला कीर्तन करो और मुझको राधा कृष्ण का फोटो दे दो, और हृदय पे लगाकर देह त्याग किया। तो ये एडवांस, ऐसा नहीं कि ये ख्याली बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है वर्ड समझने में, पर ये एक्चुअल एग्जांपल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कौन लोग भाव भक्ति पे पहुंच गए। और कई भक्त है हमारे इस्कॉन में जो ये लेवल पे है, पर दिखने भी नहीं देते, सामने आने भी नहीं देते, पता नहीं। जैसे कि अभी हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने नींद में चामर डुला रहे, आरती कर रहे हैं, ये क्योंकि ये वो लेवल पे है ये लोग, तभी तो ये सब कर पाते हैं। हम लोग नींद में क्या करते हैं, बुक्की मार रहे, लात मैं तो करता हूँ, तो हमारा लेवल अलग है। तो बात ये है कि देयर इज होप, होप है हमारे लिए भी। जब हमारे आचार्यों ने ये रखा हुआ है, सिद्धांत बताया हुआ है, ये प्रैक्टिकल, हम लोग ऐसे नहीं कि कोई ख्याली बातें है। मैंने अभी 3 एग्जाम्पल बताया और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ जहाँ भक्त लोग ने एडवांस स्टेज पर वो कैसे बिहेव करते हैं, वो दिखता है। तो कई भक्त हमारे बीच में चल रहे हैं, वो लोग, हमारा सौभाग्य है कि चल रहे हैं। ये भागवत बताता है कि ये जो भक्त है, भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त आए हैं, इनको भौतिक जगत में कुछ काम नहीं है। प्रभुपाद ने एक बार इंटीमेट मूवमेंट में बताया था कि आई नेवर वांटेड टू कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट कृष्णा फोर्स्ड मी, कि मुझको कभी आना ही नहीं था भौतिक जगत में, पर कृष्णा ने बोला आप जाइए। तो वो लोग का कुछ, वो भागवत बताता है कि ये लोग चलते ही जमीन भर भौतिक जगत पे ताकि दूसरों का कल्याण कर सके। तो ये है 7वां श्लोक में, मूड ऑफ सेपरेशन आफ्टर वन ऑब्टेन्स द रिक्वायर्ड स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन। क्या है 7वां श्लोक? युगायितम निमिषेण चक्षुषा, एक युगायितम निमिषेण चक्षुषा,
प्रविष्टायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद वीर्येण। युग मतलब युगायतम वीर्येण, मतलब एक सेकंड भी मेरे को ऐसा बहुत सारे युग लगते हैं आपका बिना। गोपियों ने बोला कि अरे ब्रह्मा कितने बड़े मूर्ख हो तुमने आंखों के सामने पलक बना दी, ऐसा वो सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पलक झपकते हैं तो कृष्णा को उतना टाइम देख नहीं पाते। उनके लिए वो पलक झपकने का उनको लगता है अरे कितना लंबा टाइम गया, ये सब वेस्ट हो गया, कृष्णा को देख नहीं पाए पलक झपकने के टाइम में। तो वही भाव महाप्रभु बता रहे कि युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रविश्य। युगायतम निमिषेन मतलब एकदम छोटा, सेकंड का 12वां भाग, उतना समय मेरे को युग जितना लगता है। और अभी 8वां श्लोक बताता है हाउ टू ऑब्टेन द हाईएस्ट परफेक्शन इन द मैटर ऑफ फाइंडिंग वंस एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ गोल। हाउ टू ऑब्टेन, कैसे भगवान का शुद्ध प्रेम मिल जाने के बाद आपका इतना विश्वास दृढ़ हो गया है कि आपको कोई भी हिला नहीं सकता। अभी कोई भी विचलित परिस्थिति भी आ जाए आपके जीवन में तो ऐसे ये 8 श्लोक का डिवीजन है। ये मैं आपको वर्ड कॉपी दे दूंगा, आप अपना व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। किसको दूं मैं? आपको दे दूंगा मैं, आप अपना व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। सब लोग जिसको प्रिंट आउट नहीं देना वो रख सकते हैं। तो इसमें इसके थ्रू पता पड़ता है कि कौन सा श्लोक अभिधेय के बारे में है, कौन सा संबंध के बारे में, कौन सा साधना भक्ति के बारे में है। तो आप जब वो श्लोक बोलेंगे तो उस प्रकार का मूड, आपको क्या मूड रहना चाहिए कौन से श्लोक में, वो आपको पता रहेगा। ये इसीलिए बताया गया है। अभी दूसरे पेज पे जाएंगे तो पहला श्लोक क्या था? पहला श्लोक है आता है साधना भक्ति और संबंध ज्ञान के बारे में, ठीक है ना। पहला श्लोक आता है, तो पहला श्लोक क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये 7 प्रकार की 7 टाइप्स ऑफ परफेक्शन, 7 प्रकार का क्या बोलते हैं, पूर्णता आपको देता है। 7 प्रकार का अच्छा कार्य आपके लिए पूर्णता आपको देता है। क्या 7 प्रकार की पूर्णताएं देता है, परफेक्शन आपको देता है? अगर हरि नाम करोगे, भगवान का नाम लोगे तो 7 प्रकार की पूर्णता आपको मिलती है। वो ये पहले श्लोक में बताया हुआ है। क्या है? पहली है चेतो दर्पण मार्जनम, कि हृदय से जो मैला है वो साफ होता है। भव महा दावाग्नि निर्वापण, दावाग्नि मतलब आग है, वो शांत होती है। दावाग्नि एक और जगह यूज करते हैं हम लोग डेली, नहीं एक मॉर्निंग प्रोग्राम में एक आता है सारा दावा, तो हम लोग उसके ऊपर भी इन सब पे चर्चा करेंगे। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, उसके बाद क्या करता है कि वो जो हृदय में कमल है भक्ति का उसको उभारता है। विद्या वधु जीवनम, विद्या हर प्रकार की विद्या आपको हरिनाम से आ जाती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, और आनंदाम बुद्धिवर्धनम वो बढ़ते ही जाता है, मन में जो आनंद है बढ़ते जाता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, और वो बढ़ता है और विदाउट एनी स्टॉपेज। कोई बोलेगा आनंद है, हमको तो सुख मिलता है पर दुख भी तो आता है बाद में। नहीं, प्रतिपदम हर क्षण हर कदम पर आपका वो वर्धन होते रहेगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन सर्वात्म स्नपनम, और ये कैसा है, ये क्या इसके पीछे कोई वैयक्तिक क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल बेनिफिट है क्या इसके पीछे? नहीं, कोई इसमें वो आदान प्रदान नहीं, ये प्योर है, ये अनकंडीशनल लव है जो आपको मिलेगा भगवान के प्रति। कब मिलेगा? हरे कृष्णा महामंत्र जप करोगे, हरिनाम करोगे। शिक्षाष्टकम एक्चुअली हरिनाम की महिमा ही बताने वाला है कि अगर भगवान का नाम लोगे
तो क्या होगा? यही शिक्षाष्टकम का मूलभूत सिद्धांत है, इसलिए हम लोग सुबह हर मॉर्निंग प्रोग्राम में जाप करते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम से चालू कर, 7 प्रकार की जो आपको मिलेगी, उसमें पहला है चेतो दर्पण मार्जनम। अभी जैसे कि ये पंखा है, यहीं पर लगा है, तो इस पे बहुत सारी धूल लगी हुई है। ऐसे ही हमारे हृदय में कितनी धूल है, इसको साफ करना बहुत आसान है। पर हमारे हृदय में, जैसे ये पंखा, अगर ये पंखा तो भी आसान है, पर कभी आप किचन वाला पंखा देख लोगे तो वो और भी डिफिकल्ट रहता है। क्यों रहता है डिफिकल्ट? ऑयल हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। पर ठीक है, वो आपका सपोज 6 महीने से साफ नहीं किया था, पर वो पंखा आपने 10 साल से साफ नहीं किया होगा तो कितना मेहनत लगेगा, और भी डिफिकल्ट होगा। 30 साल से नहीं किया रहेगा तो और भी डिफिकल्ट। पर आपके जो हृदय में या हमारे हृदय में जो मैला है, ये कितने टाइम से नहीं साफ किया गया है? हाँ, बहुत जन्मों से, मिलियंस एंड मिलियंस। पर हम अभी इस रूम में बैठे हैं तो हम लोग एक चीज तो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि भाई सफाई चालू हुई है। पिछले 2-3 जन्म 4 जन्म से हमने कुछ तो प्रयास किया है, ताकि इतने करीब हम आ गए। कंठी माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, माला रोज कर रहे हैं, प्रभुपाद का बुक्स हाथ में मिल गया है, भक्तों का संग मिल गया है, गुरु कौन है पता है। तो इतना तो हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि भाई पिछले 2-3 जन्म से कुछ तो ठीक हो रहा है हमारे जिंदगी में, और वही चीज हमको कंटिन्यू करनी है और उसको फर्दर एक्सेलरेट करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, प्रभुपाद के गुरु, कि आई सी नो रीजन व्हाई ऑल माय डिसिपल्स शुडंट गो टू बैक होम, बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम, कि इस जन्म में ही सब लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे, इसके लिए मुझको कुछ कारण नहीं लगता है कि क्यों नहीं जा पाएंगे। आराम से जा पाओगे। जैसे अभी आजकल आईआईटी में एडमिशन लेना तो एलएन में कोचिंग ले लो, पहुंच जाओगे, ऐसा क्लेम करते हैं। आके अन अकेडमी में चले जाओ। तो हम लोगों ने एडमिशन ले लिया है किसमें? इस्कॉन में ले लिया है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? नंबर 1। यहाँ पे इतना अच्छा बुक्स है, इतना अच्छा मंदिर में ड्रेसिंग, अरे वही मैंने ऐसा ड्रेसिंग और ये सब इतना ब्यूटीफुल डिटीज नहीं देखा है। एटलीस्ट मैं मेरा तो बोल रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं है कभी इतना। वो भी दिन में 2 बार चेंज करते। कई बार मैं मंदिर जाता हूँ तो 15 दिन में 1 बार कपड़ा चेंज, यहाँ तो दिन में 2 बार करते। और भोग भी लगाएंगे तो 1 बार, पर यहाँ कितना 6 बार या 8 बार, 8 बार लगाते हैं मंदिर में भोग। और हर एक भोग में इतना वैरायटी, इतना बनाते। ये क्यों किया प्रभुपाद ने? इतना सेवा खड़ा क्यों किया? क्योंकि सेवा करते करते ही हृदय में शुद्धिकरण होगा। सब चीज चाहिए, हमको सेवा चाहिए, हमको नाम जप करना है, हमको सुनना है भगवान के बारे में, हमको भक्तों का संग लेना है, हर चीज हमको प्रचार करना है, हर चीज। ये पूरा पैकेज है प्रभुपाद ने जो दिया हुआ है हमको, और उसको पूरा अच्छे से यूज करना हमारे हाथ में। कि बेनिफिट, जैसे आईआईटी में आपका एडमिशन हो गया, आईआईटी में बेस्ट से बेस्ट लैब्स रहते हैं, उसमें आप अपना संशोधन कर सकते हैं, बेस्ट में बेस्ट टीचर्स रहते हैं, उनको पूछ के व्हाइट पेपर लिख सकते हैं, बेस्ट में बेस्ट कंपनीज आती है, वहां पे आप उसमें जॉब ले सकते हैं। पर आईआईटी में रहने के बाद भी आपने इनका इस्तेमाल नहीं किया तो आपने मौका गंवा दिया। तो हम लोग भी आईआईटी में है। कौन से आईआईटी में है हम लोग? इस्कॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो इस्कॉन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसेंडेंटल भक्ति, ऐसा बोल सकते हैं, आईआईटीबी। तो हम लोग उसमें हैं, हमको मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो क्या करता है ये चेतो दर्पण मार्जनम? ये हाँ, जैसे वो आता है ना बाथरूम क्लीन करने का, जिद्द से जिद्दी दाग निकाले आपका, एक ही। तो ये वो है, हरि नाम की एडवर्टाइजमेंट है, जिद्द से जिद्द, मुश्किल से मुश्किल
अनर्थ आपके हृदय में से निकाले, वो है ये हरिनाम। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब क्लीनिंग द मिरर ऑफ द हार्ट। दूसरा, कभी कभी जैसे ये क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जैसे पूरा एक गोल आईना है, आईने के ऊपर बहुत धूल है, थोड़ा सा भी आप क्लीन करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको दिखने लगता है। जो इफेक्ट आपने अगर वास्तविक रूप में मेहनत करके उसको थोड़ा भी डस्ट रिमूव किया ना हृदय से, दैट एनकरेजेस यू टू क्लीन फर्दर मोर। कि थोड़ी आपने साफ सफाई किया तो वो साफ सफाई आपको और प्रोत्साहित करता है कि और प्रोत्साहित करो, और थोड़ा साफ करो। जैसे कि हमारे प्रभुपाद के शिष्य है वैशेषिका प्रभु, वो बोलते हैं कि पूरा रूम अगर बिखरा हुआ है और बहुत सारा आप थक गए हो, आपको काम करने का मन नहीं, तो सिर्फ क्या करो, एक ही चीज उसमें से उठा के कुछ रखो। जैसे पेंसिल नीचे पड़ी है, पेंसिल उठा के उसको अपनी जगह पे रख दो। पूरा रूम मत साफ करो, सिर्फ एक ही चीज उठाओ। तो वो एक चीज करोगे ना तो वो आपको स्टिमुलेट करती है दूसरी चीज, आगे की चीज करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है वो आगे की चीज। तो ऐसे ही आप थोड़ा भी हृदय में से कुछ साफ होगा ना, देन कृष्णा ओपन्स द कर्टन अ बिट, थोड़ा कर्टन खुलेगा भगवान का। फिर कुछ अनर्थ कर दोगे, पर्दा बंद हो जाएगा, पर्दा फिर थोड़ा खुलेगा। पर हमको वो ध्यान रखना है कि ये पर्दा कॉन्स्टेंटली खुलता रहे, मतलब हृदय में साक्षात्कार भगवान का होता रहे। इसके लिए हमारी साधना पक्की रहनी चाहिए। और ये चेतो दर्पण मार्जनम से क्या होगा, भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो भव शब्द का क्या है मतलब कि भव सागर, भवाम्बुधि, ऐसे शब्दों में आता है। इसका मतलब है कि अटकना, कहीं पे तो फंस जाना, फंस कर कहीं रहना। भव महादावाग्नि निर्वापनम, जो बद्ध जीव बंध गया है दावाग्नि में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेज़न में कई बार जंगलों में आग लग जाती है, तो आग को कैसे बुझाते हैं लोग, ऊपर से छिड़काव, पर वो नहीं होता है, ऊपर से बारिश आएगा तभी वो बड़ी बड़ी आग जो है वो तब थमती है। नहीं तो ये छोटे छोटे ट्रक लेके जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, वो काम उस पर, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर लंबी आग लगी हुई है, वो ऐसे नहीं बुझती है। तो वैसे ही हृदय में जो आग लगी है, किस चीज की आग लगी है, ये भौतिक इच्छा पूरी करनी है, वो भौतिक इच्छा पूरी नहीं, ये मन में अहंकार चल रहा है, ये मेरी प्रभुता, इस पे प्रभुता दिखानी है। तो ये अलग अलग प्रकार की हृदय में आग जल रही है, जिसमें हम लोग अटके हुए। और वो आग को जो पूरा करते हैं हम लोग, तो वो क्या करती है, वो घासलेट का काम करती है। कुछ चीजें कोई किसी के मन में रहेगा कुछ, ये मुझको आज अच्छे से बाहर जाके पिज्जा पार्टी या कुछ करना है बाहर, तो वो क्या करता है, वो वहां पे थमता नहीं है, वो आपके मन में और एक नया चीज डाल देता है कि अगली बार मुझे ये खाना चाहिए, अगली बार मुझे ये कर। वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। तो ये जो आग है ना, इसको कोई लोग बोलते कि ठीक है, मन की क्या इच्छा मार दे क्या, फिर हम सब लोग सब इच्छा मार दे क्या, तुम्हारे लिए बाहर का भी नहीं खाया, ये भी नहीं करे। नहीं, बाहर का खाना है तो हम बोलते हैं कि भगवान को भोग लगा के खाओ। आपको कुछ अच्छा देखना है तो भगवान का नाटक देखो। हमारा वो फिलोसॉफी नहीं कि आंख बंद कान बंद नाक बंद, वो नहीं, अच्छा मत देखो बुरा मत देखो, नहीं, अच्छा बुरा मत देखो, नहीं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो हृदय में जो जिस प्रकार की आग हमारे अंदर लगी हुई है, वो चाहे कुछ भी हो, हर एक के हृदय में वो लगी हुई है आग। नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। पर
अभी गुड न्यूज ये है कि वो आग भी बुझाने का प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। वो प्रोडक्ट है इस्कॉन है, और वो इस्कॉन द्वारा प्रस्तुत, महाप्रभु द्वारा एंडोर्स्ड हरिनाम महामंत्र। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, निर्वापणम मतलब वो भव महादावाग्नि जो चल रही है अंदर, उसको वर्षा वर्षा के द्वारा बुझा दिया जाता है। तो वो ये महामंत्र करता है। और कितने लोगों को ऐसा ऐसा किसी को लगा है क्या कि हमारा जो भौतिक इच्छाओं के प्रति आकर्षण है अभी भी, पर थोड़ा कम हुआ है? किसी को ऐसा लगा है क्या महामंत्र जप करने से? दैट मीन्स प्रोसेस इज वर्किंग। तो ये हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो भी इच्छा रहती है भौतिक, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरी खत्म भी हुई है, पर अगर आप बीमार हो, 104 डिग्री बुखार था और वो कम ही नहीं हो रहा था, पर कुछ अलग अलग दवाई लेने के बाद थोड़ा, एक दवाई से वो 104 का 103 हुआ, मतलब होप है कि ये दवाई से ठीक होगा। तो वो दवाई को, वो प्रोसेस को और तीव्रता पूर्वक हमें कंटिन्यू करना चाहिए। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय कैरव, अभी कैरव का मतलब क्या रहता है? कैरव मतलब कमल होता है। आपके घर में है, इनके घर पे ब्रह्म कमल है ना आपके घर में, वो क्या होता है? चंद्रमा के सामने वो रात में खिलता है। तो ये क्या करता है? जो हृदय में भक्ति का कमल है, उसका उजागर हरिनाम करता है। डिफ्यूजेस द मून रेज ऑफ भाव भक्ति फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द सोल। तो ये हरिनाम आगे क्या करता है? भव श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, उसके ऊपर जो कमल है हृदय में भक्ति का, भाव भक्ति का, उसको पूर्ण रूप से सुशोभित करता है, पूर्ण रूप से उजागर करता है। तो ये हम लोग अगेन अभी कंटेक्स्ट लूज ना करें, इसके लिए हरिनाम हमारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन लाता है, वो 7 विधिया, 7 पूर्णता इस श्लोक में, पहले श्लोक में दी गई है, जो कि हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग सब है मेरे साथ? थोड़ा डिफिकल्ट है आज का, पर ये डिटेल में समझ लेंगे तो आप मैकेनिकली चैंट करना बंद कर देंगे। और जब भी आप भगवान ये शिक्षाष्टकम चैंट करेंगे, गाएंगे, तो ये भावना के साथ गाएंगे, तो उसका इफेक्ट 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा, कि उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो पहला चेतो दर्पण मार्जनम क्या है? क्लीनिंग द डस्ट ऑन द हार्ट। उसके बाद क्या है? दावाग्नि, दावाग्नि कम कर, डिफ्यू। और धीरे धीरे क्या करता है? श्रेय कैरव चंद्रिका। चौथा आता है विद्यावधु जीवन। अभी विद्या का मतलब क्या है? जैसे हमारा शास्त्र बताता है कि कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान वो विद्या है। और कितना भी बड़ा पढ़ लिख किसने भी कुछ लिया ना हो, IIT भी चला गया हो, तो भी हम शास्त्र उसको अविद्या बताता है। कि कितने भी बड़े PhD, साइंटिस्ट, डॉक्टर आप हो, तो भी भौतिक ज्ञान जो भी है वो पूरा अविद्या की कैटेगरी में आता है। और क्यों अविद्या की कैटेगरी में आता है वो? क्योंकि उसका लाइफ टाइम है, खत्म हो जाता है वो, और वो आपको एज सच जीवन में प्रगति में कुछ काम में नहीं आता। भौतिक प्रगति में आता है, आध्यात्मिक, पर वास्तविक प्रगति तो आध्यात्मिक प्रगति है। तो इसके लिए उसको अविद्या बोलते हैं। तो विद्या वधु जीवनम। अभी हरिनाम, केवल हरिनाम भी आपने कर लिया, हमेशा सतत आप हरिनाम ले रहे हो, तो ये क्या बताता है? हरिनाम क्या करता है कि पूर्ण रूप से ज्ञान आपको उजागरित करता है हृदय में। जैसे कि एग्जाम्पल दूं तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, जो कि प्रभुपाद के
गुरु के गुरु थे, वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर फिर भी सारे शास्त्र का ज्ञान उनको था। कैसे? वो बहुत बड़े भक्त थे वो, और उनको हृदय में भगवान, इसलिए क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हम लोग गाते हैं ना सुबह कि हमको जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होता है, उसको कुछ अलग प्रोसेस नहीं है। अगर नाम रूप गुण लीला बोलते हैं हम लोग, अगर नाम लेंगे तो भगवान का रूप आता है, रूप आएगा तो उनके गुण आते हैं और लीला भी दिखती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला। तो नाम से ही ये सब शुरू होता है, ये सब साक्षात्कार शुरू होता है। तो विद्यावधु जीवनम, अच्छा, जो ये विद्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भगवान की शक्ति है, योग माया, ये उसका एक अंग है। आध्यात्मिक ज्ञान भगवान की शक्ति है, योग माया उसका एक अंग है। और भगवान की जो शक्ति है वो कौन है? हरा, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी का विस्तार है ये ज्ञान जो हमको मिलता है। अब वो कृष्ण नाम क्या है? अभिन्न नाम नामत्व, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। तो हरि नाम हो गया हस्बैंड, एंड वधु मतलब वाइफ। तो वधु मतलब जो ज्ञान आ रहा है भगवान के बारे में, जो हृदय में प्रकाशित हो रहा है, वो भगवान की वाइफ, नारायण की वाइफ। इसीलिए बोला है विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम मतलब जो विद्या, इट इज द लाइफ ऑफ द वाइफ ऑफ ऑल द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये जो ज्ञान है वो लाइफ है, जीवन है। किसका? हरिनाम की जो शक्ति है, योग माया, जो राधा रानी से आती है, उससे आता है ये ज्ञान। तो इसके लिए उसको वधु बोला गया है, विद्या वधु जीवनम। समझा ये? फिर से ना, तो हरि नाम जो है अभिन्न नाम नामत्व, भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं। जैसे कि अभी भौतिक जगत में बोलेंगे गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन बोलने से गुलाब जामुन मेरे मुंह पे नहीं आएगा, पर भगवान का नाम, जैसे राम नाम उन्होंने पत्थर पे लिख दिया तो राम का नाम, उल्टा राम का नाम राम से बड़ा है, तो पत्थर पे नाम लिख दिया, इज एज गुड एज भगवान राम। तो वो हस्बैंड हो गए, उनकी वाइफ, जो कि जो विद्या है, विद्या आती है, जो आध्यात्मिक विद्या आती है, वो योग माया का अंग है। और योग माया है भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का विस्तार हो गया ये ज्ञान। तो इसीलिए वो अब राधा रानी क्या है? वधु। तो विद्या वधु जीवन, जो कि जीवन को जीवन प्रदान करता है ये ज्ञान। आनंदाम बुद्धिवर्धनम। अभी किसी को क्या पता है क्या कि जीव जो हमारा आत्मा का साइज कितना है? तो कोई बोलेगा अरे आत्मा इतना छोटा है, उसको आनंद कितना प्रदान हो सकता है? इतना सा तो आत्मा है। अरे कोई बच्चा रहेगा, इतना सा तो बच्चा है, क्या खाइए, क्या तो खा लेगा, 2 रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, क्या खाएगा? पर ऐसा नहीं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जो इतना सा आत्मा है, उसको जो आनंद प्रदान करेगा, वो ओशन कितना आनंद है कि वो एक समुद्र के समान इतना आनंद दिया जाएगा। जैसे कि बीच में एक हवाई जहाज मलेशियन एयरलाइन का 370 है ना, वो इंडियन ओशन में गिर गया था। तो बहुत उसको
ढूंढने का प्रयास किया गया है सालों सालों तक उसको, और अभी जाके शायद उसका कुछ अवशेष मिला है। तो इतना बड़ा सागर जो है उसमें एक हवाई जहाज भी एकदम तिनके समान दिखता है। तो ऐसे कई सागर, समुद्र से भी बढ़कर आनंद प्रदान कर, आनंद मिलेगा, आनंदम बुद्धिवर्धनम, जो कि, और यही नहीं कि एक समुद्र है, वो वर्धनम, हमेशा बढ़ रहा है। वो कोई भी चीज अपन लेते हैं तो समय के साथ, जैसे लैपटॉप है, वो लैपटॉप थोड़ा उसकी उम्र है, कुछ टाइम बाद वो नष्ट हो जाएगा, पर ये जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बढ़ते ही जाने वाला है। समय के साथ उसका वर्धन ही होने वाला है, उसमें कमी नहीं आने वाली। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम मतलब, अच्छा ये आनंद कभी रुकेगा क्या? जैसे सुख दुख आता है तो मतलब आप सोचोगे कि अभी ये आनंद तो मिला पर ये रुक जाएगा थोड़े समय बाद, तो ये इसमें स्टॉपेज नहीं है। जैसे कि शहद को हम डालते हैं ऊपर से नीचे, तो शहद कैसा कंटिन्यू एक धारा चलती है उसकी, उसमें ब्रेक नहीं रहता है। तो ये भी शहद की धारा जैसा है। ये प्रेम जो है भगवान का, जिसमें वर्धन होने वाला है, इसमें रुकावट तो नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? कि कंटिन्यू है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण, और हर जगह पे ये बताता है कि इसका आस्वादन भी आपको मिलेगा। अगर हरिनाम करेंगे तो जो भगवान के प्रति प्रेम उजागृत होगा, आपको भाव भक्ति निष्ठा ये सब स्टेजेस पार करके आप इसमें, आपको इसका आस्वादन भी मिलेगा, जो आप अपने हृदय में अनुभूति कर पाओगे। जैसे एक भक्त को आप देख सकते हो कि कैसे उसकी साधना, जैसे प्रभुपाद को किसने बोला कि प्रभुपाद एवरीवन लव्स यू, आपको सब लोग प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि मैं सबको प्रेम करता हूं, बिकॉज आई लव एवरीवन। अभी प्रभुपाद ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये जो ब्लिस मिल रहा है प्रभुपाद को अंदर भगवान का नाम लेकर के, आनंदम बुद्धिवर्धनम, तो उसके कारण ही इज ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश है। वो खुश है, अच्छे है सबके साथ, ताकि सब लोग भी उनके साथ अच्छे हैं। इसीलिए बिकॉज ही हैज सो मच लव इन हिज हार्ट। बिकॉज आपके हृदय जब फुल हो गया, अभी क्या है, हृदय में काम क्रोध मोह मद मत्सर्य ये सब भरा हुआ है, पर इसको निकाल के जब हरि नाम डालेंगे तो ये सब अनुभूति आएगी। तो आपके पास देने के लिए केवल प्रेम ही रहेगा सबको, और जब आप सबको प्रेम देंगे तो सबसे प्रेम मिलेगा भी। और सर्वात्म स्नपनम, अंत में सर्वात्म स्नपनम का अर्थ होता है कि ये जो भगवान का नाम हम ले रहे हैं, भगवान के प्रति भक्ति उजागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं है। ये हम लोग भगवान के प्रति प्रेम उजागृत करने के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। और इसमें ये शुद्ध है। ये कोई बोलेगा कि क्या ये हरिनाम कुछ आप भौतिक चीज के लिए, जैसे कई बार सुख संपत्ति घर आवे प्रभु कष्ट मिटे तन का, ऐसा गाते थे ना, तो उसमें क्या है, पूरा ट्रांजैक्शन चल रहा है, ट्रेडिंग, कि मैं आरती उतारूं पर सुख संपत्ति मेरे को आना चाहिए घर पे, नहीं तो अपना ट्रांजैक्शन खत्म है कल से। तो वैसा ये अभी अभी लिखी गई आरतियां है, वो भी सब बहुत भौतिक मेंटालिटी वाले लोगों ने लिखी हुई है, कोई शास्त्र में दी हुई आरतियां नहीं है, ये सब कोई लिख दी किसी ने, वही चल रही है। पर ये क्या बात चल रही है यहाँ पर? प्योर बिजनेस, वी आर टॉकिंग प्योर
यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही कि मैं ये दूंगा, मैं नारियल चढ़ाऊंगा तो पास कर देना, दक्षिणा दूंगा, जन्माष्टमी में फंड दूंगा तो मेरा आईटी वाला केस खत्म कर देना। ये ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है यहाँ पर। ये प्योरली भगवान को बात हो रही है कि शुद्ध भक्ति, आपकी शुद्ध चित्त से भक्ति हो रही है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबुनाए। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय। और ये 7 पूर्णता से क्या होता है अंत में? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। Being adorned with this and perfection, Sankirtan is ever victorious. ये जो 7 चीजें पहले श्लोक में दी गई है, तो आपका जो संकीर्तन है, ऐसे हृदय वाला कोई संकीर्तन करेगा तो वो कंटेजियस होता है। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु जो थे, जिन्होंने 24 आवर कीर्तन किया, तो वो काफी पर्टिकुलर थे अबाउट कि कौन आके कीर्तन करेगा यहाँ पर। जिसके अगर तुम्हारे पास शुद्ध नाम नहीं है, आपके हृदय में शुद्ध नाम नहीं, तो आप किसी को दे नहीं सकते। और वो बोलते थे कि 16 माला किए बगैर कोई कीर्तन करने आएगा तो वो अपने अनर्थ सबको बांट रहा है। मतलब आप कीर्तन करने आने बैठे उसके पहले 16 माला कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, नहीं तो आप अपना अनर्थ बांटोगे सबको। तो आप ये सब हरिनाम लेकर के खुद को शुद्ध कर लोगे तो क्या होगा? आपको कोविड हो जाएगा। कोविड कैसा कोविड हो जाएगा? आपके अंदर वो बैक्टीरिया आ जाएगा जो कि आपके आसपास भी कोई आया तो उसको भी भगवान का प्रेम मिलना चालू हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद के आसपास हिप्पीज आ गए, उनको प्रभुपाद ने इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, उनको भक्त बना दिया। तो ये सब चीज हम भी अगर करेंगे तो भगवान के बहुत निकटतम पहुंचेंगे और हम में भी वो वायरस आ जाएगा जो कि इन्फेक्शन, जो भी इर्द गिर्द आएगा उसको इन्फेक्शन करेगा। और उसके साथ कई प्रकार की एम्पावरमेंट आपको भगवान से मिलती है। प्रभुपाद क्या लेके आए थे? 37 रुपीज लेके आए थे और गए तब, अभी देख लो कितना 1100 मंदिर है इस्कॉन का, इतना फार्म कम्युनिटीज है। वो काउंट नहीं है पर ओवरऑल 1100 मंदिर है, करोड़ों 55 करोड़ भगवत गीता का केवल भगवत गीता का वितरण हुआ है। 130 140 देश में इस्कॉन का सेंटर है। तो उस प्रकार से आप भगवान का सेवा का एक बहुत बड़ा पात्र बन जाते हैं, तो आपको भगवान सेवा में उन्मिलित करना शुरू करते हैं। तो ये 7, तो पहले तो आज हमने बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस की, तो सॉरी उसके लिए कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर डिस्कस किए, पर ये सब हम लोग क्योंकि शिक्षाष्टकम सीखेंगे तो ये उसके अंतर्गत आता है। नहीं तो मैकेनिकल तो शिक्षाष्टकम हम रोज पढ़ ही सकते हैं, पर ये वर्ड बाय वर्ड समझ के पढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत आएगा कि किस श्लोक में क्या भाव की बात चल रही है, क्या उसका मर्म है, दावाग्नि का मतलब क्या है, कैरव चंद्रिका क्या होता है। तो जब आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा, आप उसको पूर्ण रूप से टेस्ट कर पाएंगे। तो हमने संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में पढ़ा। संबंध के बारे में कोई फटाफट बता दीजिए, क्या डेफिनेशन है संबंध की? हाँ, कनेक्शन विद गॉड, संबंध, अभिधेय, अभिधेय मतलब आवर एंडेवर, हमारा जो प्रयास है भगवान को के साथ संबंध स्थापित करने के, वो अभिधेय होगी। प्रयोजन, अभी 2 माताओं ने दी, एक प्रभु से नहीं, वो अभिधेय हो गया।
हाँ, फल 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 मिलना, फल का इंतजार का वो प्रयोजन। अल्टीमेट फ्रूट दैट यू विल गेट इज प्रयोजन। अच्छा, नौ नौ क्या है? नौविधा भक्ति की प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है? हाँ, नहीं बिना देखे। अच्छा, पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, वो बता दो। 3 थे ना? हाँ, साधना, भाव और प्रेम। साधना अगेन 7 में डिवाइडेड है। एक एक बोलो सब लोग। आदव, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, 4 हो गए और 3 बाकी। निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो ये उसके 7 डिवीजन थे। तो हमने संबंध, भाव, और इसमें कौन सा श्लोक किसके बारे में वो इसमें दिया हुआ है कि कौन सा श्लोक आपका संबंध है, संबंध अभिधेय प्रयोजन है, कौन सा आपका साधना भक्ति का है, कौन सा भाव का है और कौन सा प्रेम का है। फिर पहले श्लोक में हमने 7 प्रकार की सिद्धि, सिद्धि बोल सकते हैं, 7 प्रकार की सिद्धि जो हरिनाम हमको देता है। पहले तो हमने 8 श्लोकों का मर्म समझ लिया, फिर हमने पहला श्लोक पकड़ा जिसको 1 बाय 1 हमने एनालाइज किया, डाइसेक्ट किया, और वो 7 प्रकार की सिद्धि हमको देता है, वो हमने पकड़ लिया इसके अंदर। कि पहला जो है चेतो दर्पण मार्जन, कोई बताए फटाफट। हृदय को साफ करना। भाव महादावाग्नि, क्या बोला? भौतिक को हृदय में जो आग लगी है उसको शांत करने का काम वो करता है, हरिनाम करता है। श्रेया कैरव चंद्रिका, माता जी आप बताइए। फुल ब्लॉसम करना है हृदय का कमल। प्रेम का जो भाव भक्ति का कमल है वो उजागृत होता है। उसके बाद है विद्यावधु जीवनम, ये वाला डिफिकल्ट, इजी में एकदम। इजी में वही ध्यान रखिए कि विद्यावधु जीवनम, ये हरिनाम सब प्रकार की विद्या आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग भागवत पढ़ना बंद कर सकते हैं, हमको चैतन्य चरितामृत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ पढ़ना है, ये भी करना है, क्योंकि हमारा उसका चैंटिंग नहीं है वैसा। नहीं तो बोलोगे इन्होंने तो बोला था कि चैंटिंग ही करना है, ऐसा नहीं है। और आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? किस चीज का आनंद की वृद्धि होती है? जैसे एग्जाम्पल के साथ बताओ आपको, तो अभी अपन लोग प्रसाद लेंगे, सपोज प्रसाद में गुलाब जामुन है, तो आप कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं? हाँ? एक, आप दो। अगर सर्वर खुश रहा आपसे तो 2 देगा, नहीं तो 1 ही खा सकते हैं। नहीं, पर मैं बोलूं अनलिमिटेड खाओ तो कितने खा सकते हैं? तो अभी गुलाब जामुन तो पसंद है ना सबको, खाना चाहिए ना ज्यादा, 15। हाँ, पर भौतिक यही फर्क है, भौतिक सुख में और आध्यात्मिक सुख में। भौतिक सुख का हमेशा एक कैप रहता है। अभी मुकेश अंबानी ने बेटे का शादी किया, उसको भी कैप लगाया, बहुत पैसा खर्चा किया, 5,000 करोड़ फिर भी लगाया, पर उसमें भी लिमिटेड है। जो भी आए रहेंगे शादी में वो तो उतना ही खाएंगे ना, 2 रोटी सब्जी चावल दाल वही खा के गए रहेंगे। उसको इनफाइनाइट तो किसी को कुछ
पर ये क्या बोलता है कि हरि नाम आपको ऐसा प्रेम प्रदान करता है जिसका आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो प्रतिक्षण वो बढ़ता ही जाता है, वो प्रेम आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड है। चेतना हम क्या है, जीव बना किसका है, सच्चित आनंद, उसको आनंद चाहिए। और ये हरिनाम क्या करता है, वो आनंद की खोज में हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं रेस्टोरेंट में, मूवी थिएटर में, पब में, यहाँ वहाँ हाइकिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, पर आनंद मिलता नहीं है, मिला तो भी क्षणिक मिलता है। अभी एक और थोड़ा भक्ति रथामृत सिंधु में रूप गोस्वामी 3 प्रकार के आनंद बताते हैं। एक तो है भोग्य आनंद, दूसरा है ब्रह्मानंद, और तीसरा है प्रेमानंद। तो भोग्य आनंद जो है कि जो भौतिक जगत में हमको मिलता है, वो आनंद, जो कि उन्होंने बताया एक बूंद के समान है, जैसे बारिश की एक बूंद गिरी, वो भौतिक आनंद मिल गया। ब्रह्मानंद वो आनंद है जो कि योगीज और जो ध्यान करते हैं वो लोग को आनंद मिलता है जब भगवान के स्वरूप में वो मिल जाते हैं। जो मायावादी रहते हैं, मिलते तो नहीं है, स्वरूप में सम्मिलित हो जाते हैं जो कि, तो उनको जो आनंद मिलता है वो उन्होंने बताया कि एक गाय का जो बछड़ा रहा और बछड़ा चलता है तो उस जगह पे थोड़ा खड्डा हो जाता है ना, उसमें पानी भरता है, उतना आनंद बताया हुआ है। पर प्रेमानंद उन्होंने बताया हुआ है, प्रेमानंद क्या है, असंख्य समुद्रों के में जितना पानी है उतना ये भरा हुआ है। तो आनंदम बुद्धि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम। आप रुको, आप बहुत बता दिए, और कोई बताओ। प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम मतलब वो कंटिन्यूअस है, उसमें ब्रेक नहीं है। आनंद मिला तो कोई बोलेगा अरे अभी एक टाइम बाद तो गुलाब जामुन खाना बंद करना पड़ेगा ना, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूस आनंद मिलेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कंटिन्यू, हमको आनंद चाहिए, सच्चित आनंद हमेशा ही चाहिए। हम लोग सोते भी है तो सपना अच्छा आना चाहिए हमको, हमारा रिक्वायरमेंट मतलब इतना हम चिपके हुए आनंद से। खराब सपना है, डायरेक्ट क्या खराब सपना आ गया है, आज कुछ ऐसा करेंगे कि रात को अच्छा सपना है। तो हमारा रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई नींद में 24/7 हमको प्लेजर मिलना ही चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, और ये वो गारंटी से प्रोवाइड करते हैं। सर्वात्म स्नपनम, जो प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न होगा वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, वो सुख संपत्ति घर आवे प्रभु कष्ट मिटे, वो नहीं है, ये अनकंडीशनल लव है। ये जो प्रेम मिलेगा हरि नाम जप करके आपको, ये अहेतु की अप्रतिहता, इसमें कभी रुकावट नहीं होगी, और नहीं, अहेतु की मतलब उसके बीच कोई हेतु नहीं है, और अप्रतिहता मतलब उसमें कभी रुकावट भी नहीं है। तो ये अपना आज एक श्लोक हो गया, ये थोड़ा डिटेल में किया अपन ने, आगे और श्लोक करेंगे जब मैं आऊंगा तो उसको थोड़ा फास्ट लेंगे, ठीक है। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। हाँ हाँ, दुख तो भौतिक जगत में जब तक है, भगवान ने गारंटी दिया है कि दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों का जगह ही है। पर इंटरनली जैसे पांडव थे, पांडव को क्या दुख, हर प्रकार का दुख आया, उनसे उनका राजपाट ले लिया गया, उनसे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनसे छल कपट किया गया, उनकी पत्नी का अनादर हुआ, हर प्रकार का दुख उनको आया, पर देर ऑलवेज कंपोज्ड,
इंटरनली एक्सटर्नली दुख आया। प्रहलाद महाराज को एक्सटर्नली दुख आया, उनको हाथी के नीचे डाल दिया, उनको जहर पिलाया, उनको होलिका की गोद में बिठा के एक्सटर्नली। पर इंटरनली व्हाट वाज प्रहलाद महाराज? वाज इन ब्लिस, परफेक्ट थे वो। तो एक्सटर्नल का गारंटी नहीं है, एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, पर हरिनाम आपको इंटरनल का गारंटी, और वही मैटर करता है। एक्सटर्नल पीस और हैप्पीनेस ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज मुकेश अंबानी हैप्पी है, अभी पूरा पिक्चर देखेंगे आत्मा का तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा। जैसे कई बार ऐसा दिखता है कि इतना रईस इंसान है, जैसे कि रेड्डी चिकन या KFC चिकन ऐसा बोलते, उतरेगा गाड़ी से उतर के उसको अटैक के मर गया, आपको आगे का सीन दिखाएगा कि कैसे वो मुर्गी बन के आगे उसको ही पोल्ट्री फार्म में भेजा गया, तो आपको पता पड़ेगा कि अरे इसकी जीवन तो बहुत अच्छी थी, पर अभी क्या मिल रहा है इसको। तो एक्सटर्नल से हम जज नहीं कर सकते कि ये इंटरनली कहां पर क्या स्टेट पर है। इसीलिए वो डोनेशन भी देने आए थे इस्कॉन वालों ने, तो लिया भी नहीं था। रेड्डी चिकन वाले जो थे, उनका बेटा भी गर्दन कट के एक्सीडेंट में मर गया था वो, तो नो वन एक्सेप्टेड। बोले आपका ट्रांजैक्शन बहुत डेंजरस है, आप डायरेक्ट हुंडी में डालो, हमको मत दो। वही ने इस्कॉन में उनका नहीं लिखा पैसा। तो एक्सटर्नली गुडनेस वी डोंट नो। काफी लोग बड़े बड़े महल बना के रह रहे हैं, पर उनका इन्वेस्टमेंट क्या है? वो इन्वेस्ट करते हैं लोगों को भ्रमित करने वाले बिजनेस में, लिकर शॉप ओपन करते हैं, जुआ खिलवाते हैं लोगों को, मटन बेचते हैं, बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सटर्नली दिखेगा कि उनको सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंटरनली दे आर स्टिल इन डिप्रेशन ओनली। डज दैट आंसर? हाँ हाँ, करेक्ट। वही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी प्रैक्टिकल, और आप उसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमारा ये है कि भगवान पर्सनली इंटरफेयर करते हैं लाइफ में, वो आप सभी लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाउ लॉर्ड पर्सनली इंटरवीन्स। हाँ हाँ, मैकेनिकल हो जाता है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मन को कैसे नियंत्रित करना है। भगवान बताते हैं कि वो जाता है ना, वापस से ध्यान चले जाता है, उसको खींच के वापस इधर लेके आओ। वही काम है आपका कि मन चला गया वापस, उसको खींच के वापस इधर लेके आओ, खींच के लेके आओ। वही आपका एक्सरसाइज है। उसको, आपको दुख आया है, किसी को और सभी को कुछ ना कुछ दुख है। यहाँ पर मैं रूम में बोलूंगा किसको दुख नहीं है, हाथ ऊपर करो। तो किसी ने नहीं किया, सभी को कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ वो मन का काम ही है, वो उसका जॉब कर रहा है। वो मन, साधारण व्यक्ति के लिए माया का इन्फ्लुएंस कैसे चलता है, वो मन के माध्यम से चलता है। हमारे लिए माया मन के द्वारा एक्ट करती है। तो मन क्या करता है, बार बार उठ के ये पिक्चर का सीन याद करो, ये होटल का खाना याद करो, ये दोस्त को याद करो, देखो ये कितना अच्छा लड़की है, आपने पहले ही देखा था उस दिन। ये ऐसा अलग अलग कार्ड वो उठा के दिखाते रहता है। आपको उसको ध्यान नहीं देना, उसको खींच के लेके आना वापस। तो मन तो बार बार आपको विचलित करने का उसका काम वो कर रहा है, पर आप उसके पीछे देख के चले गए, हाँ तो गए गाड़ी। तो आप उसको लेके आइए बार बार। तो श्लोक है, मैं श्लोक रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, भगवत गीता में श्लोक है। नहीं, वो नहीं है। एक मन के ऊपर है कि उसको खींच के लेके आने पे है, बाद में बताता हूँ मैं। और किसी को कुछ प्रश्न है?
वही भाव भक्ति का आगे का स्टेप प्रेम भक्ति है। तो भाव भक्ति में देयर इज अ बड, एक हृदय में थोड़ा सिम्टम्स यू स्टार्ट गेटिंग, और उसको पूर्ण रूप से 100% फीलिंग ऑफ सेपरेशन और फीलिंग द लव, ecstatic love of Godhead, that is prem bhakti. Bhav bhakti is the initial stage of that. मिस नहीं, you cannot forget Krishna, that is prem bhakti. अभी हमको याद करना पड़ता है भगवान को, but that is like प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनको बोला प्रभुपाद sometimes I fall into Maya. प्रभुपाद बोले what? You sometimes fall into Maya? अरे sometimes you are with Krishna, you are chanting Krishna, you are always in Maya. Sometimes you are coming in Krishna consciousness. तो वैसा है. But प्रेम भक्ति भाव भक्ति में like the gopis and all, they never forget Krishna. They are always thinking of Krishna. Like one small example I'll give कि नारद मुनि was doing one test एक बार कि I want to know who is the best devotee of Lord, और मैं भगवान से ही पता करता हूँ. तो भगवान को जाके पूछते, भगवान बोलते क्या है, बोले नारद बाद में आना, मेरे ना सर में बहुत दर्द है अभी, बाद में. मैं क्या, अच्छा एक काम करो नारद, मेरे को वैद्यराज ने बताया कि मेरे जो भक्त है ना उसके चरण धूलि सर पे लगाऊंगा तो सर दर्द चला जाएगा. तो नारद मुनि को बोलते तुम मेरे भक्त हो, थोड़ा चरण का धूलि दे दो, लगा दूंगा चला जाएगा. बोले अरे मेरे को क्या नर्क में जाना है क्या, आपको धूलि दूंगा तो मुझको पता है पाप लगेगा, मैं नहीं दूंगा. तो बोलेंगे अरे नारद एक काम करो, उधर जाओ, ब्रज में जाओ, वहां पे जो अनपढ़ गोपियां है ना उनको कुछ समझता नहीं, उनको जाके पूछो, वो मेरी भक्त है, देती है क्या. वो गोपियां तुरंत से अरे कितना बकेट चाहिए लेके आओ, हमारे चरण का धूलि ले. अरे नारद बोले तुम इतने अनपढ़ हो, तुमको ये भी नहीं पता है कि तुमको सबको नर्क जाना पड़ेगा अपना चरण धूलि भगो. तो हाँ हमको पता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें. अरे हमारे चरण धूलि से कृष्ण का एक सेकंड भी सरदर्द दूत होता है तो सफल है हमारा जीवन. तो वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ लव विच वी एट दिस लेवल हमको बहुत डिफिकल्ट है समझना. बट दैट डजंट मीन वी शुडंट, उसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं, प्रयास हमें करना चाहिए, मिलेगा वो. यह शास्त्र बताता है कि वो स्टेप आएगी और हर एक स्टेज पे, जैसे इसीलिए हमने 9 विधा भक्ति पढ़ी कि कैसे रुचि आएगी, कैसे टेस्ट आएगी, फिर आसक्ति आएगी. तो वो स्टेप सीक्वेंशियली जाएगा और उसमें एक लेवल तक आपको अपना फोर्स लगाना है, उसके बाद इट इज ऑटोमेटिक. ठीक है, कैसे ठीक है, आज कथा से ही समाप्त करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.